العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا صلوات پڑھیں محمد و آل حضرات گرامی قدر مومنین، مسلسل اسی آئے مبارکہ کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جس میں خداوند عالم اپنے حبیب کے مناقب کو بیان کر رہا ہے، اپنے حبیب کا قصیدہ بیان فرما رہا ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے اور نذیر بنایا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے اگلی آیت میں دعوت ایمان دی ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی کو دعوت ایمان دینا تو دعوت ایمان سے پہلے فضائل سنانا، دعوت ایمان سے پہلے مناقب سنانا، تاکہ ایمان لانے والا سچا ایمان لے کے آئے، یقین والا ایمان لے کے آئے، شک والا ایمان نہ لائے۔ اسی لیے یہ فضائل کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس نے بھی معجزات دیکھے، یہی معجزات ہی تو فضائل ہیں۔ یہ جس نے بھی معجزات دیکھے اور معجزات کے ذریعے وہ ایمان لے کے آیا تو اسے کبھی شک نہیں ہوا ہے، اسے کبھی شک نہیں ہوا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے تو اصحاب اہل بیت میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں مگر معجزات دیکھ کے ایمان لائے ہیں، معجزات آل محمد کے اختیارات دیکھ کے ایمان لائے ہیں۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، اختیارات دیکھ کے ایمان لائیں۔ جیسے تاریخ میں جناب فتح کا واقعہ ملتا ہے، آپ نے 1000 دفعہ سنا ہوگا، تو یہ بھی ایک معجزہ دیکھ کے ایمان لے کے آئے ہیں۔ فتح چونکہ یہ اپنے چچا کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور ان کا چچا بادشاہ تھا۔ بہت چونکہ یہ طولانی گفتگو ہوتی نہیں اس وقت کی، چند لمحوں کی گفتگو ہوتی ہے، تو میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی باتیں پہنچتی رہیں۔ فتح اپنے چچا کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کا چچا بادشاہ تھا، نام تھا اشکبوس، تو اس کی لڑکی سے انہوں نے رشتہ دیا تو وہ تھا دشمن اہل بیت، علی سے جلنے والا، علی سے بغض رکھنے والا، علی سے عداوت رکھنے والا، کٹر دشمن تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے شادی تو اپنی بیٹی کی کرنا ہی ہے، تم سے بہتر کہاں کوئی ملے گا، کیونکہ تم تو جانے پہچانے ہو، میرے بھتیجے ہو، کچھ جاننا نہیں کچھ پہچاننا نہیں، تم سے بہتر کون ہو سکتا ہے، میں شادی کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تمہیں مہر دینا پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ فتح کہتے ہیں کہ ہاں میں مہر دینے کے لیے تیار ہوں، مہر دوں گا، اگر آپ بادشاہ ہیں تو میں بھی آپ ہی کا بھتیجا ہوں، بتائیے مہر میں کتنی جائیداد چاہیے، کتنا خزانہ چاہیے، کتنے درہم و دینار چاہیے، کتنا مال و منان چاہیے، ہم سب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے میرے پاس دولت بھی ہے، میرے پاس خزانہ بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس سلطنت بھی ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تو پھر بتا پھر میں کیا مہر کے طور پہ دوں؟ تو اس نے کہا کہ اگر میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے مہر میں علی کا سر چاہیے ہے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، مہر میں علی کا سر چاہیے، اگر علی کا سر لے کے آؤ تو میری بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ غور کیجئے گا، تو اس نے کہا کہ مہر دینا پڑے گا، اور مہر میں مجھے دولت نہیں چاہیے، خزانہ نہیں چاہیے، مال و منان نہیں چاہیے، مجھے چاہیے علی کا سر۔ اگر علی کا سر لے آؤ تو میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا، اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروا دوں گا۔ تو اس نے کہا دیکھو میں نے سنا ہے، کبھی دیکھا تو نہیں ہے، میں نے سنا ہے علی بڑے شجاع ہیں،
अली बड़े बहादुर हैं, अली बड़े दिलेर हैं, अली मर्द मैदान हैं, तो लिहाजा मैं चाहता हूँ, वो फत्ता कहता है, मैं चाहता हूँ कि मुझे 40 सिपाही दे दो ताकि मैं अली का सर बआसानी लेके आ जाऊं और तुम्हारे हवाले कर दूं। तो उसने कहा लो ये 40 सिपाही ले जाओ और अली का सर लेके आओ और मेरी बेटी तुम्हारे हवाले है, मैं शादी कर दूंगा। लीजिए ये 40 सिपाहियों को लेके फत्ता चला और आया, गौर कीजिएगा, आया मदीने। जब मदीने पहुंचा तो देखा वहाँ एक बाग है, बाग में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक शख्स बैठा हुआ है जिसके हाथ में बेलचा है, थोड़ा बेदार रहिएगा, जिसके हाथ में बेलचा है। बस एक मर्तबा ये फत्ता आगे, फत्ता भी बहुत शुजा था, अरब में शुजात में इसका भी एक नाम था फत्ता का, गौर कीजिएगा, और 40 सिपाही लेके आ गया। लीजिए अब एक मर्तबा वो शख्स के पास फत्ता आता है जो बेलचा लिए हुए पेड़ के नीचे है, उसके पास फत्ता पहुंचता है और पहुंच के कहता है ये भाई ये बताओ क्या तुम अली को जानते हो? अब जुमले समझना आपका काम है, पढ़ना हमारा काम है। उससे पूछा क्या भाई तुम अली को जानते हो? उस बेलचे के मालिक ने कहा मुझसे बेहतर अली को कोई जानता ही नहीं है। और कीजिएगा, मुझसे बेहतर अली को कोई जानता ही नहीं है। आवाज़ दी ज़रा अली का हुलिया बताओ, अली कैसे हैं, अली का चेहरा कैसा, आंखें कैसी, हाथ पैर कैसे, ताकि पहचानने में आसानी हो। तो उस बेलचे के मालिक ने कहा कि अगर अली को देखना चाहते हो तो मुझे देख लो, बिल्कुल मेरे जैसे अली हैं। गौर कर रहे हैं आप, एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिल्कुल मेरे जैसे अली हैं, मेरे जैसे अली हैं। अब अपनी तारीफ खुद से थोड़ी अच्छी लगती है। अब कोई हम जैसा होता तो उसको जवाब देता, जब वो पूछता कि ज़रा अली का हुलिया बताओ कि अली का हुलिया कैसा है, आंखें कैसी हैं, चेहरा कैसा है, हाथ कैसे हैं, तो हम जैसा होता तो बताता कि आंखें ऐनुल्लाह हैं, पेशानी जबहतुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है, ज़बान लिसानुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है। गौर कर रहे हैं आप। अब अपनी तारीफ खुद तो नहीं अच्छी लगती है, तो एक मर्तबा उस बेलचे के मालिक ने कहा कि बिल्कुल मेरे जैसे हैं अली, बिल्कुल मेरे जैसे हैं अली। अब उसने फत्ता ने ज़ाहिरी जिस्म को देखा और वो जो 40 अफराद लेके आया था उनकी तरफ मुखातिब होकर फत्ता कहता है अगर इनके जैसे अली हैं तो 40 को बेकार लेके आया, इनको तो हमारे लश्कर का एक कमज़ोर आदमी भी हरा देगा। गौर कीजिएगा, हमारे लश्कर का एक कमज़ोर आदमी भी हरा देगा इनको। तो एक मर्तबा बेलचे के मालिक ने कहा भाई ये हारने जीतने की बातें क्यों कर रहे हो? आवाज़ दिए बताओ अली मिलेंगे कहाँ? कहा पहले काम बताओ क्या काम है? आवाज़ दी अली का सर काटने आए। कहा जुर्म क्या है? कहा जुर्म तो कोई नहीं है। कहा फिर सर क्यों काटने आए हो? कहा इसलिए कि मैं अपने चचा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ और महर में उसने अली का सर मांग लिया है, तो वही सर लेने के लिए आया हूँ। ये बताओ अली कहाँ मिलेंगे ताकि मैं सर काटूँ? उस बेलचे के मालिक ने कहा तो ऐसा करो अली से बाद में लड़ना और पहले मुझसे लड़ लो। गौर कीजिएगा, अली से बाद में लड़ना और पहले मुझसे लड़ लो। अगर तुम मुझसे जीत जाओगे तो अली से भी जीत जाओगे। तो एक मर्तबा फत्ता कहता है आप बज़ाहिर आपका जिस्म ऐसा है और आपसे मैं लड़ूं ये मेरी तौहीन है। अगर मैं जीत गया तो लोग कहेंगे एक कमज़ोर को हरा दिया, इसमें कोई मेरा नाम तो होगा नहीं। कहा फिर क्या मतलब है? कहा जो हमारे लश्कर का सबसे कमज़ोर है वो आपसे लड़ेगा, वो भी आपसे जीत जाएगा। तो एक मर्तबा बेलचे का मालिक कहता है यहाँ कोई कुश्ती थोड़ी होना है, हारने जीतने की बात कर रहे हो। कहा फिर क्या किया जाए? कहा जोर आजमाई कर लेते हैं, किसमें कितनी ताकत है और जोर आजमाई कर लेते हैं। कहा कैसे? कहा तुम्हारे हाथ में, बेलचे का मालिक कहता है कि फत्ता से कि तुम्हारे हाथ में नेजा है और हमारे हाथ में बेलचा है, तुम अपने नेजे को जमीन पर गाड़ दो, हम अपने बेलचे को जमीन पर गाड़ते हैं, उसके बाद हमारा बेलचा तुम जमीन से उखाड़ना, तुम्हारा नेजा हम जमीन से उखाड़ेंगे, पता चल जाएगा किसके बाजुओं में कितना दम है। अल्लाहु अकबर। एक सलावात तो बड़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पता चल जाएगा किसमें कितनी ताकत है। गौर कीजिएगा, यहीं पे बात तमाम हो जाएगी। तो फत्ता ने कहा ठीक है, मंजूर है ये शर्त। अब फत्ता, अब जुमले समझना आपका काम है और लुत्फ उठाना आपका काम है, पढ़ना हमारा काम है। लीजिए, फत्ता ने नेज़ा उठाया
और पूरे जिस्म की क़ुव्वत को अपने बाजुओं में इकट्ठा किया। गौर कीजिएगा, जुमले समझना अब आपका काम है। पूरे जिस्म की क़ुव्वत ताकत को बाजुओं में इकट्ठा किया फत्ताह ने, और अपने नेज़े को दोनों हाथों से पकड़ा और उसके बाद पूरी ताकत के साथ ज़मीन पर नस्ब कर दिया, ज़मीन पर नेज़े को गाड़ दिया। फत्ताह ने पूरी ताकत से नेज़े को ज़मीन पर नस्ब कर दिया, ज़मीन पर गाड़ दिया। बेलचे के मालिक ने बेलचा उठाया, ज़मीन पर रख दिया। भाई पता नहीं आप समझ रहे कि नहीं? भाई जो इस फर्क को मुलाहिजा करेगा वही लुत्फ उठाएगा। या अली, बेलचे के मालिक ने ज़मीन पर बेलचे को रख दिया। लीजिए, अब बात आई कि नेज़ा तुम उखाड़ो, बेलचा हम उखाड़ेंगे। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों। तो एक मर्तबा बेलचे का मालिक आगे बढ़ा और नेज़े को 2 उंगलियों से पकड़ा और ज़मीन से ऐसे उठा लिया। उखाड़ा नहीं, उखाड़ने में तो ताकत लगती है। ज़मीन से ऐसे उठा लिया कि जैसे कोई बच्चा पड़ी हुई फूल की पंखुड़ी उठा लेता है। अल्लाहु अकबर, ऐसे उठा लिया। 2 उंगलियों से कुछ याद नहीं आ रहा है आपको? अल्लाहु अकबर। भाई 2 उंगलियों से नेज़े को बेलचे के मालिक ने उठा लिया। अब लीजिए, आई कहा कि आओ बेलचे को अब तुम उखाड़ो, तुम्हारा नेज़ा तो हमने ज़मीन से उखाड़ लिया है, अब आओ बेलचे को तुम उखाड़ो। जो गाड़ा गया था उसे उठाया, अब जो रखा गया है अब बात उसकी है। गौर कर रहे हैं आप? जो रखा गया बात उसकी है। तो रवायत कहती है कि फत्ताह आगे बढ़ा और अपनी फिर पूरी कुव्वत को बाजुओं में इकट्ठा किया और दोनों हाथों से बेलचे को पकड़ा और चाहा एक ही झटके में बेलचे को उखाड़ फेंके, लेकिन उखाड़ना तो दूर की बात है, बेलचा जमीन से हिला भी ना पाए, हिला भी ना सके, बेलचे को हिला भी ना सके। तो एक मर्तबा बेलचे का मालिक कहता है, देखो तुम्हारे अकेले की बस की बात तो नहीं है, ये जो 40 लाए हो इनका लाना बेकार ना हो, सबको शामिल कर लो। अल्लाहु अकबर। गौर कर रहे हैं आप? ये जो 40 लाए हो इनका आना बेकार ना हो, सबको मिला लो, सबको शामिल कर लो, सबको साथ ले आओ। लीजिए, अब वो 40 के 40 आए और बेलचे में जोर आजमाई कर रहे हैं, मगर बेलचे को जमीन से हिला ना सके। जुमला चाहे जैसे सुने, बेलचे को जमीन से हिला ना सके। सबके सब तो किनारे हट गए थकार के। फत्ताह की इज्जत की बात आ गई थी। अब फत्ताह जोर आजमाई किए जा रहा है कि किसी तरीके से बेलचे को उखाड़ फेंके, लेकिन नहीं हिला सका बेलचे को। थक हार के एक मर्तबा फत्ताह बेलचे को छोड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एक मर्तबा बेलचे के मालिक के कदमों को पकड़ के कहता है, भाई तुम सच सच बताना, कहीं आप ही तो अली नहीं है? अल्लाह, एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई सच सच बताइएगा, आप ही तो अली नहीं है? आवाज़ दी फत्ताह, पहचानने में देर की, मैं ही अली हूँ। आवाज़ दी तो या अली आया था, सर काटने जाऊँगा नहीं, कलमा पढ़ा दीजिए। देखा आपने मोजज़ा देखा, फजीलत देखी, सिर्फ एक फजीलत, ताकत, कुव्वत, शुजाअत। गौर कर रहे हैं आप? सिर्फ एक फजीलत देखी, आया था सर काटने, पढ़ने लगा कलमा। गौर कर रहे हैं आप? पढ़ने लगा कलमा, और कलमा अकेले नहीं पढ़ा, जो आए थे सब ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के, अब जुमला कहूँ मेरे अजीजों, कलमा पढ़ के ये सब मुसलमान नहीं बने, डायरेक्ट मोमिन बने। अल्लाहु अकबर। भाई कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं बने, डायरेक्ट मोमिन बने। क्यों? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अटके थोड़ी, अली वलीउल्लाह तक आ गए, तो डायरेक्ट मोमिन बने। तो एक मर्तबा मौला ने कहा, अब तुमने कलमा भी पढ़ लिया है और मेरे दामन से लिपट गए हो, तो ऐसा करो कि जो अली के दरवाज़े पे आ जाता, अली से मुंसलिक हो जाता है, अली उसकी ख्वाहिशों को, उसकी हाजतों को पूरा कर देता है। कहा या अली मैं समझा नहीं। कहा तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिससे तुम चाहते थे। कहा मौला वो बादशाह तो आपका कट्टर दुश्मन है, वो कैसे शादी करेगा अपनी बेटी की मुझसे, और फिर ये जान के कि मैं अली वाला बन चुका हूँ? वो तो बिल्कुल शादी नहीं करेगा। आवाज़ दी इसकी फ़िक्र छोड़ो, कल रात को उसके ख्वाब में नबी आ चुके हैं, वो बेटी लेके फला जंगल में आ रहा है, मेरे साथ तुम इधर से चलो, वो उधर से आ रहा है। क्या शान होगी कि जिसका निकाह रसूल ने पढ़ा हो वो आज कंबर का निकाह पढ़ने जा रहा है।
क्योंकि ये फत्ताह कोई और नहीं थे, ये जनाब कंबर हैं, जिनका नाम अली ने बाद में कहा आज से तुम्हारा नाम मैं कंबर रखता हूँ। नाम भी कंबर रखा। कितना आलीशान गुलाम है कि नाम भी अली ने रखा, निकाह भी अली ने पढ़ाया। अल्लाह अकबर, क्या शान है, अल्लाह अकबर। निकाह भी अली पढ़ा। जिसका निकाह आसमानों पे हुआ हो, जिसका निकाह आसमानों पे हुआ हो, वो अली फत्ताह यानी कंबर का निकाह पढ़ ले। कंबर आए थे सर काटने के लिए, मगर बन गए अली के शहदाई। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, बन गए अली के शहदाई। ऐसे शहदाई बने कि फिर गए नहीं, अली के कदमों पर सर रखा तो उठाया नहीं, अली के दहलीज से मुंसलिक हुए तो बादशाहत को ठुकराया, शहनशाहियत को लात मार दी। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, इनकी गुलामी अख्तियार कर ली। तो आपने देखा मोजज़ा, आपने मोजज़े के और फजीलत की फजीलत देखी क्या है कि आए थे सर काटने, फजीलत देखी कलमा पढ़ने लगे। अब समझे ये मजलिसों में क्यों फजाइल बयान होते हैं? इसीलिए ताकि आने वाला जो आया है वो यहाँ से ऐसे ही ना चला जाए, कुछ तो जहन में लेके जाए। आज ना सही तो कल तहकीक करके आएगा, वहां बैठने वाला परसों यहाँ बैठेगा। सलावात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये फजाइल ही का कमाल तो है, ये फजाइल ही तो है। जनाब कंबर का अक़्द भी अली ने करा दिया और नाम भी रख दिया कंबर। आज से फत्ताह नाम नहीं है, आज से कंबर तुम्हारा नाम है, आज से कंबर नाम है। शादी भी उसी लड़की से करा दी। और कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, वो बादशाह भी अली वाला बन गया क्योंकि नबी ख़ाम में आके उसे बता चुके थे। तो ये सब फजीलत ही तो हैं जो कलमा पढ़वा रही। आप भी मानते हैं तो फजीलत ही के ज़रिए तो मानते हैं, आप तक फ़ज़ाइल ही तो पहुँचाए गए हैं। और नबी ने जिस मिंबर से मसाइल सुनाए उसी मिंबर से आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल भी सुनाए। मसाइल इसलिए सुनाए हैं ताकि आमाल में कोई कमी ना हो, आमाल में गलती ना हो। फ़ज़ाइल इसलिए सुनाए ताकि अक़ीदे में गलती ना हो। मसाइल आमाल सुधारते हैं, फ़ज़ाइल अक़ीदा बनाते हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और यही फ़ज़ाइल की ही अदावत है। मैंने कल कहा था कि जो आले मोहम्मद को सताया गया, जो आले मोहम्मद को परेशान, यही फ़ज़ाइल ही तो हैं। वरना आले मोहम्मद ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सिर्फ फ़ज़ाइल की दुश्मनी तो थी कि सारी फजीलतें इन्हीं के दामन में क्यों हैं। ऐसी अदावत फजीलत के सबब, फ़ज़ाइल के वजह से ऐसी अदावत कि आले मोहम्मद को रुला रुला के मारा गया है। तो फ़ज़ाइल की ही तो दुश्मनी थी। इमाम हुसैन ख़ुद कहते हैं अना क़तीलुल अबरा, मुझे रुला रुला के ज़िबा किया गया है, मुझे रुला रुला के मारा गया। बस मेरे अजीज़ों, आज 5 मुहर्रम है, आहिस्ता आहिस्ता अय्याम अज़ा जा रहे हैं। आप अपने अपने बिस्तरों पर लेट के सोचिएगा, क्या हमने रोने का हक़ अदा कर दिया? क्या हमने अज़ा का हक़ अदा कर दिया? क्या हमने, हुसैन हमारे मेहमान थे, क्या मेहमान नवाजी का हक़ अदा किया? सब अपने अपने ज़मीरों से पूछिएगा ज़रूर, और उसके बाद फिर वैसे ही अज़ा कीजिएगा जैसा दिल करे। मेरे अजीज़ों, तसव्वुर कीजिएगा, रुला रुला के मारा गया। आज की तारीख़ चूँकि उन 2 शहज़ादों से मंसूब है, मारे तो सब एक ही दिन गए हैं, शहीद तो सब आशूर के दिन हुए, लेकिन ये तारीख़ें इसलिए मंसूब कर दी गई हैं ताकि हम एक एक की शहादत बयान कर कर के रो लें। हम ज़्यादा तो इस वक्त कुछ नहीं बयान करेंगे, रात की मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही कहेंगे कि जनाब ज़ैनब ने, जनाब अब्दुल्ला ने अपनी पूरी कमाई हुसैन पर लुटा दी, पूरी कमाई कुर्बान कर दी। 2 ही शहज़ादे थे, दोनों हुसैन के नाम कर दिए। जब मदीने से काफ़िला चला था
तो अब्दुल्ला ने यही कह के ज़ैनब के हवाले दोनों बच्चे किए थे, ए शहज़ादी ज़ैनब, जब हुसैन पर कोई बुरा वक्त आए तो एक को मेरी तरफ से, एक को अपनी तरफ से हुसैन पर कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारों, अब दो शहज़ादों की बात आई है तो मैं उन मोहम्मद का ज़िक्र रात की मजलिस में करूँगा, लेकिन मैं इस वक्त दो ही शहज़ादों की बात करूँगा। दो शहज़ादे और याद आ रहे हैं। कौन से दो शहज़ादे जानते हैं? जब जनाबे मुस्लिम कूफे आए थे सफ़ीर हुसैन, तो वो भी दो शहज़ादों को लेके आए थे, दो बच्चों को जनाबे मुस्लिम भी लेके आए थे। जनाबे मुस्लिम की शहादत के बाद दोनों शहज़ादे यको तनहा रह गए। दोनों बच्चे कमसिन हैं आज़ादारों, दोनों बच्चे कमसिन हैं। जनाब मुस्लिम के बच्चों को कैद कर लिया गया, कैद खाने में मुस्लिम के बच्चे हैं। बस 2 मिनट दे दीजिए, मजलिस तमाम हो रही है। जनाब मुस्लिम के बच्चे कैद सितम में हैं। जानते हैं मेरे अजीज़ों, कैद खाने में जनाब मुस्लिम के बच्चों को एक सूखी, दोनों बच्चों को एक सूखी हुई रोटी दी जाती थी और एक कूजे में गर्म पानी दिया जाता था। गर्म पानी ये खाना था, क्योंकि इब्ने ज़ियाद का हुक्म था कि इन्हें अच्छा खाना न देना, इनको बस ऐसा खाना देना कि बस जिंदा रहें, ताकि ये तड़पते तड़पते गुजारे इस कैद खाने में। सुनना आज़ादारों, तो एक सूखी हुई रोटी और एक कूजे में दोनों बच्चों को पानी दिया जाता था। सूखी हुई रोटी होती है अजीज़ों, तो वो पानी ही के ज़रिए खाई जा सकती है, लेकिन पानी भी तो इतना नहीं दिया जाता था कि पानी के ज़रिए रोटी खा सके। तारीख कहती है कि चंद दिनों तक बच्चों ने वो पानी के साथ रोटी खाई, चंद चंद लुक़मे। लेकिन जब बच्चों से बर्दाश्त ना हुआ तो छोटे भाई ने बड़े भाई को देखा, बड़े भाई ने छोटे भाई को देखा, आवाज़ दी, भैया आज हम दरोगाए ज़िंदान से कुछ बात करते हैं। आवाज़ दी, क्या बात करेंगे भाई? आवाज़ दी, भाई हम बात करते हैं, हम बताते हैं इन्हें कि हम किस ख़ानदान से हैं, हम किस कबीले से हैं। शायद ये मुसलमान हो, शायद कुछ रहम करे, मुझे खाना तो ऐसा दे दे कि हम इस कैद खाने में गुजार सकें। लीजिए, एक मरतबा दरोगाए ज़िंदान खाना लेके आया अपने वक्त पर। ये दोनों बच्चे बैठ गए। आवाज़ दी, हम आज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहा, क्या बात करना चाहते हो? आवाज़ दी, मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानते हो? आवाज़ दी, हाँ हम उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं। बच्चे खुश हो गए। आवाज़ दी, अली मुर्तज़ा को जानते हो? उस दरोगाए ज़िंदान ने कहा, हाँ हाँ वो तो मेरे पहले इमाम है। जैसे ही पहले इमाम कहा, बस बच्चों के दिल भर गया। आवाज़ दी, अच्छा इसका मतलब ये है कि ये अली वाला है, ये अब मुझ पे कुछ तो रहम करेगा, क्योंकि ये अली को पहला इमाम मानता है। आवाज़ दी, अकील को जानते हो? कहा हाँ हाँ वो अली के भाई हैं। कहा मुस्लिम को जानते हो? कहा हाँ हाँ वाकिफ़ हूँ, अभी यही कूफे ही में तो मारे गए हैं। आवाज़ दी, मुझसे वाकिफ़ हो? कहा नहीं आपको नहीं जानता हूँ। आवाज़ दी, उसी मुस्लिम के यतीम है, हम उसी मुस्लिम के लाल हैं। आवाज़ दी, तो शहजादों मुझे माफ़ कर देना, मैं इतने दिन से आप पर सख्ती कर रहा था, मुझे नहीं पता था आप शहजादे हैं, आप अली के घर वाले हैं। अल्लाह अकबर। 2-3 जुमले हैं, मजलिस ख़त्म हो रही है। आज़ादारों लीजिए, आवाज़ दी कि मुझे रसूल अल्लाह को मुँह दिखाना है। शहजादों मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। मैं आपको कम से कम खाना तो अच्छा दे सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था आप कौन हैं, आप कौन हैं, नबी और अली से आपकी क्या निस्बत है मुझे नहीं मालूम था। ए शहजादों, अब मैं इस तरीके से अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूँ कि मैं रात आएगी, रात की तारीकी में मैं दरवाज़ा खोल दूँगा, आप चले जाइए, आप जिंदान से निकल जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि रात ही रात आप कूफे के बाहर चले जाइएगा, इस हुकूमत से बाहर निकल जाइएगा। एक मर्तबा रात आई, इस दरोगा जिंदान ने दरवाजे को खोल दिया। दोनों शहजादे जिंदान के बाहर आए, मगर कूफे के रास्तों से नावाकिफ हैं, बच्चों को गलियां नहीं पता है। तारीख कहती पूरी रात बच्चे चलते रहे, लेकिन जब सुबह हुई तो बच्चों ने देखा कि अभी हम उसी जगह
कूफे पे मौजूद हैं, अभी हम कूफे के बाहर नहीं निकल पाए हैं। अज़ादारों ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, वहीं पर एक तालाब था जिसके पास पेड़ था। बच्चे डर के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, बच्चे बैठ गए पेड़ के ऊपर कि कोई मुझे देख ना पाए। एक कनीज आती है, हारिस की कनीज। आने के बाद उसने जब पानी भरा उस तालाब में, तो पानी में आपने देखा होगा अगर ठहरा हुआ पानी हो तो चेहरा नज़र आता है, चांद नज़र आता है, अक्स नज़र आता है। अब जो उसने पानी में देखा तो दो चांद से चेहरे नज़र आए। सर उठा के देखा तो दो शहजादे पेड़ के ऊपर हैं। आवाज़ दी, बच्चों नीचे आ जाओ। कहा अगर जान की अमान हो तो नीचे आओ। उसने कहा हाँ आ जाओ। वो बच्चे नीचे आए। कहा कौन हो तुम लोग? तारुफ करा दिया अपना। कहा आओ आओ, मेरी जो शहजादी, वो कनीज कहती मेरी जो शहजादी है, मालिकिन है मेरी, वो अहले बैत की चाहने वाली है, आओ आओ। तो वो खुश हो जाएगी तुम्हें देख के। बच्चों को लेके आई। हारिस की ज़ौजा अहले बैत की चाहने वाली थी। उसने अपने घर में बच्चों का इस्तकबाल किया, एक रूम हुजरा दे दिया, इसमें लेट जाओ। बच्चे लेट गए, खाना दे दिया, खाना खा लिया। लीजिए, इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कि जो दो बच्चों को ढूंढ के लाएगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा। हारिस पूरा दिन बच्चों को ढूंढता रहा, पूरा दिन ढूंढता रहा बच्चों को। सुनना अज़ादारो, बस दो मजलिस तमाम हो रही है। अज़ादारो तारीख कहती है कि एक मर्तबा हारिस शाम को घर आ गया, थक हार के घर आया, देखा बीवी उस हुजरे में बार बार आ जा रही है, बार बार आ जा रही है। अज़ादारो तारीख कहती है कि बच्चों को समझा के, बच्चों को कुछ बातें बता के हारिस की ज़ौजा उस हुजरे से बाहर आ गई। रात की तारीकी है, हारिस उठता है, एक चराग लेता है, उस हुजरे में आता है। एक मर्तबा क्या देखता है, दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। जैसे ही हारिस को बच्चों ने देखा, बच्चे सहम गए, बच्चे सहम गए। तारीख कहती है बस एक मर्तबा हारिस सामने बैठा और बैठने के बाद कहता तुम कौन हो, अपना तारुफ कराओगे? तो एक मर्तबा बच्चे डर के कहते हैं अगर तुम मुझे कत्ल ना करो तो मैं बताऊं। कहा नहीं कत्ल करूंगा। कहा खाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम, खाओ अली मुर्तज़ा की कसम। बच्चों ने जब ये कहा, उसने झूठी कसम भी खा ली। एक मर्तबा बच्चों ने कहा हम मुस्लिम इब्ने अकील के फर्जंद हैं, हम मुस्लिम के लाल हैं। अजीजों, जो तारीख में जुमला लिखा है वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं बस एक इशारा करूंगा। जैसा ही हारिस ने यह सुना कि यह मुस्लिम के लाल है, उसने अपने दोनों हाथों को उठाया और ऐसे बालों में डाला, ऐसे बालों में हाथों को डाला, दोनों बच्चों की जुल्फों को पकड़ा, बच्चों को खींचता हुआ हुजरे से बाहर लाया, एक रस्सी से बच्चों को बांध के दरवाजे में बांध दिया। कहा सुबह तुम्हें कत्ल किया जाएगा। लीजिए सुबह मैंने सब छोड़ दिया। लीजिए सुबह हुई, दरिया के किनारे आए, एक मर्तबा गुलाम से कहा कत्ल करो। कहा मैं नहीं कत्ल कर सकता। बेटे से कहा मारो। कहा मैं नहीं मार सकता। हारिस खुद आगे बढ़ा, आवाज दी, एक मर्तबा आवाज दी, कहा तुम अपने अपने कुर्ते उतारो ताकि मैं तुम्हें कत्ल कर सकूं। अब एक मर्तबा जैसा ये सुना, छोटा भाई रोने लगा, बहुत कम सिन था, छोटा भाई रोने लगा। एक मर्तबा बड़े भाई ने कहा भैया रोने का सबब? आवाज दी, भैया मुझे तो कुर्ता भी उतारना नहीं आता, मेरी अम्मा कुर्ता उतारा करती थी, मुझे लिबास ना पहनना आता है, ना उतारना आता है। अज़ादारा मुझे नहीं मालूम बच्चों ने कैसे लिबास उतारा। दोनों भाइयों के गले पर तलवार चली, भाई भाई के खून में गलता, लाशों को फुरात के हवाले किया गया। भाई भाई ने एक मर्तबा एक दूसरे को आगोश में लिया, फुरात के अंदर। माता